پروانے ہیں، یہ اردو زبان ہے ہماری زبان، اس شمع کے ہم پروانے ہیں، صحبائے وفا و الفت سے لبریز یہاں پیمانے ہیں، یہ اردو زبان، یہ اردو زبان، یہ اردو زبان۔ السلام علیکم بھائی، آپ لوگوں نے یہ شمع جو جلا رکھی ہے اس سے بڑی تقویت ہوتی ہے۔ ہم لوگوں نے بھی شکاگو میں چھوٹی سی شمع جلا رکھی ہے، کافی لوگ ہیں وہاں اردو کے متوالے، اردو کلچرل سوسائٹی ہم لوگوں نے قائم کی ہے، اور ہر چوتھے اتوار کو شامبت لائبریری میں ہمارا پروگرام بھی ہوتا ہے، اور اردو کلاسز بھی سمر میں ہوتی ہیں، فری ہوتی ہیں سب۔ بہرحال یہ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ شروع کیا ہے، اور آج تو کئی شعراء آنے والے تھے مگر کچھ ایسے واقعات ہو گئے، ہمارے کسی صاحب کی سرجری ہو گئی، ایک صاحب کی آنکھ کی سرجری ہوئی، کچھ اور ویسے شکاگو میں کل بھی مشاعرہ تھا، خواہ حیدرآبادی صاحب اور ایک اور شاعر وہاں حیدرآباد تکین سے آئے ہوئے ہیں، کل مشاعرہ ہوا تھا، میں گھر 2 بجے رات کو وہاں سے ہم اٹھے، آج بھی مشاعرہ ہے اور کل بھی ہے۔ بہرحال میں آپ لوگوں کو پہلے ابھی آپ اردو زبان کے سلسلے میں قصیدے سن رہے تھے جو بڑی خوبصورت غزلیں، نظمیں، اشعار، قطعات، رباعیات سب نے سنائے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی نظم سنا دوں، اردو میری اردو۔ میں نے اردو کی چھوٹی سی تاریخ اس میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، کچھ آج کے مسائل پہ بھی ہے، دیکھیے کسی قابل ہو گئے۔ عرض کیا ہے کہ ہند و پاکستان دونوں جلوہ گاہے علم و فن، جن کی پیشانی پہ رقصاں فکر و دانش کی کرن، چشتی و گوتم کا مسکن، رام و نانک کا وطن، مختلف قوموں کا اور نسلوں کا یہ رنگی چمن، اور اس چمن کا ایک گلے شاداب ہے اردو زبان۔ یہ ایک چمن ہے، ہندوستان پاکستان کی سرحد اردو میں نہیں ہے، نہ کینیڈا میں ہے نہ یہاں ہے، پورا ایک چمن اردو کا ہے کہ مختلف قوموں کا اور نسلوں کا یہ رنگی چمن، اور اس چمن کا ایک گلے شاداب ہے اردو زبان، جس کی خوشبو سے معطر آج ہے سارا جہاں۔ ایک زمانہ تھا کہ مشترکہ زباں کوئی نہ تھی، مختلف کلیاں تھیں جانے گلستہ کوئی نہ تھی، کہہ سکے سب جس کو وحدت کا نشان کوئی نہ تھی، بن سکے جو ملکہ ہندوستان کوئی نہ تھی۔ آنکھ کھولی اس نے لشکر کی صفوں کے درمیان، آپ کو معلوم ہوگا کس نے، شاہجہاں کے زمانے میں لشکر کی صفوں میں آنکھ کھولی اس نے لشکر کی صفوں کے درمیان، اور مسکرائی پھر یہ زیر سایہ شاہ جہاں۔ من ملاحظہ کریں، اس کی بازی گاہ طفلی بزم دلی کی فضا، اس کی بازی گاہ طفلی بزم دلی کی فضا، اور محفل ارض دکن نے بخشے آداب حیا، لکھنؤ میں اس نے سیکھے اشو و ناز و ادا، اور وادی پنجاب کا ہر باغ پن اس کو ملا، برج بھاشا کی چہیتی ملکہ عالم بنی، گل بنی، بوٹا بنی، شولا بنی، شبنم بنی۔ اس کے دامن میں حرم بھی ہے، صنم خانے بھی ہیں، مسجدیں بھی، خانقاہیں بھی ہیں، میخانے بھی ہیں، اس کے دیوانوں میں اپنے بھی ہیں، بیگانے بھی ہیں، تار بھی زنار کے، تسبیح کے دانے بھی ہیں، یہ محبت اور اخوت کی ہے تابندہ کرن، اور اس کے مذہب میں نہیں ہے فرق شیخ و برہمن۔ جنگ آزادی میں چمکی مثل تیغ بے نیام، اور پھونکتی پھرتی تھی یہ روح بغاوت صبح و شام، ہر در و دیوار زندہ پر درخشاں اس کا نام، ڈوب کر اپنے لہو میں تھا یہ بسمل کا پیام۔ رام پرساد بسمل اردو کا صاحب دیوان شاعر اور شہید آزادی، اور اس کا شعر آپ سب کو یاد ہوگا کہ ہر در و دیوار زندہ پر درخشاں اس کا نام، ڈوب کر اپنے لہو میں تھا یہ بسمل کا پیام، سرفروشی کی تمنا پھر ہمارے دل میں ہے، اور دیکھنا ہے زور کتنا بازو بسمل و سرشار اور چکبست محسن اس کے ہیں،
राम प्रसाद बिस्मिल, रतन नाथ सरशार, ब्रिज नारायण चब्बस, सब हिंदू। पहले मिसरों में हिंदुओं के नाम है, दूसरे मुसलमानों। बिस्मिलो, सरशार और चब्बस मोहसिन इसके हैं, मुसफ़ी आजाद और इकबाल जामिन इसके हैं, प्रेमचंद और सप्रो मौजू मुआविन इसके हैं, मीर और सौदा ज़ौक़ गालिब और मोमिन इसके हैं, मीर और सौदा ज़ौक़ गालिब और मोमिन इसके हैं। हिंदुओं मुस्लिम सब इसके नाज बरदारों में है, ब्राह्मण और शेख सब इसके परस्तारों में है। फिर मुलाजा करें, हिंदुओं, ये मैंने इंडिया में इंदिरा गांधी के जमाने में ये उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें नद पड़ी थी और लखनऊ ने इसको ब्रॉडकास्ट किया। इसलिए हिंदुओं मुस्लिम सब इसके नाज बरदारों में है, ब्राह्मण और शेख सब इसके परस्तारों में है। आज फिर ये जुल्फ क्यों महरूम में लुत्फ़े शाना है, क्यों ये अपने ही चमन में सब्ज़े बेगाना है, आज तो अपना ही साकी नाज़िमे मैखाना है, फिर ये क्यों खाली फकत उर्दू ही का पैमाना है। लुत्फ़ तुलसी पर हो, गालिब की भी गमखारी रहे, कम से कम इतना तो एहसास वफादारी रहे। और साथ ही इसके मगर उठती है दिल में एक कसक, क्या नई नस्लों को भी पहुंची है कुछ इसकी चमक, क्या हमारे घर में भी फैली है कुछ इसकी महक, या ये बज़माराहियां हैं बस हमारी जात तक। फिक्र गर कोई न की हमने जो इन हालात में, तब न हो जाएगी ये तारीख के सफात, जब न होगा कोई भी अपनी जुबान का आशना, ये खजाना इल्म हिकमत का फना हो जाएगा। जैसे गालिब ने कहा वो हाल होगा बज़्म का, हम कहेंगे हाल दिल और आप फरमाएंगे क्या। कौल है इकबाल का तू अरसे महशर में है, पेश कर गाफिल अमल कोई अगर दफ्तर में है। आखिरी बंद है, ये मिटी तो खत्म सारी दास्ता हो जाएगी, इतनी सदियों की ये काबिश रायगा हो जाएगी, अजमते तारीख रफ्ता बेनिशा हो जाएगी, बज़्म हिंदो पाक भी फिर बेजुबां हो जाएगी। किस कदर मजलूम है और कितनी प्यारी है जुबां, ये हमारी है हमारी है हमारी है। ये तो भाई जरा संजीदा था, हमारा संजीदा आप लोग बहुत सुन चुके, कुछ मदाहिया सुनाया, इन्होंने सुनाया, बहुत खूबसूरत आपने सुनाया। बारह भाई, शायरी के तो असल में होता ही है कि उस सिलसिले में पहले दो शेर सुन लीजिए कि शायरी को हम समझते हैं जो रूहानी ग़िज़ा, बाज लोगों के लिए हो जाती है अक्सर अज़ाब। ट्रेन में मैंने किसी से ये कहा शायर हूं मैं, सुन के वो मुंह फेर कर बोला मैं बहरा हूं जनाब। एक दो कथात जरा सुने। अब मेरी बेगम भी चलिए आ जाने वाली थी मगर नहीं आ पाई। मुझसे बेगम एक दिन बोली, तुम बिल्कुल बेगाने हो, पड़ोसी कैसा प्यार करे है पड़ोसन से तुम भी, क्या तुम ऐसा कर नहीं सकते, दिल को इधर मायल तो करो। मैंने कहा मैं तो राजी हूँ, पड़ोसन भी तो राजी है। बीवी थी बीमार बहुत तो शौहर लग गए प्यार जताने, लगे सुनाने अपनी वफा के और मोहब्बत के अफसाने। बेगम जब तुम ही न रहोगी मैं तो पागल हो जाऊंगा, कपड़े उपड़े फाड़ के अपने जंगल को मैं निकल जाऊंगा। बीवी बोली झूठ न बोलो, खूब से तुमको जानती हूँ मैं, कितनी चाहत वाले हो तुम अच्छी तरह पहचानती हूँ मैं। मेरी आंखें बंद होते ही दूसरी औरत कर लाओगे, पागल पागल कुछ नहीं होगे, सेहरा बांध के लाओगे। शौहर बोले क्या बतलाऊं, कुछ भी मुमकिन हो सकता है, पागलपन में पागल इंसान कोई भी। एक और एक सुनिए साहब, मियाँ बीवी में थी कुछ बहस, मैं खासा सुना रहा हूँ चूंकि महफिल। मियाँ बीवी में थी कुछ बहस तकरार, थे ज़ेरे बहस गालिब के कुछ अशार। कोई जब फैसला हो ही न पाया
तो फिर तंगा के बीवी ने सुनाया, मैं मरकर जब पहुंच जाऊंगी जन्नत तो खुद गालिब से कर लूंगी वजाहत। कहा शौहर ने क्या समझी हो, आखिरी दो शेर है, कहा शौहर ने क्या समझी हो बीवी, वो शायर थे शराबी और कबाबी, जहन्नुम ही में होगा उनको रहना। कहा बीवी ने फिर तुम पूछ लेना। एक सुनिए फकीर का तजुर्बा। एक था फकीर, जाता था जो रोज मांगने मस्जिद के और मंदिरों गिरजा के सामने। मिलती तो थी रकम बसर औकात के लिए, काफी नहीं थी जो गुजर औकात के लिए। एक दिन पहुंच गया वो कैसीनो के सामने, अल्लाह के नाम पर लगा खैरात मांगने। जो आ रहे थे जेब को खाली किए हुए थे, वो तो खुद ही सूरत साहिल बने हुए। लेकिन जो आए जीत के पैसे लिए हुए, चेहरा फरोग मैं से गुलिस्तान किए। डूबे हुए थे जिस्म दिलो जहां शराब में, नए हाथ बाग पड़ते न पाते रकाब में। देखा फकीर को तो बड़ा जीत का खुमार, देता था कोई एक, कोई दो तो कोई चार। एक और आया जिसका के निकला था जैकपॉट, था अर्श पर दिमाग, निराला था ठाट बाट। मुट्ठी में नोट भर के वो खैरात कर गया, साहिल की भूखी झोली को मुंह तक वो भर गया। आखिरी दो शेर है कि पैसे मिले फकीर को एकदम जो इस कदर, बोला वो आसमान की जानिब उठा के सर, तू भी है खूब ऐ मेरे रज़ाक़ दो जहां, देता पते कहाँ के रहता है तू एक और सुनिए, आजकल हम लोगों की उम्र में ऐसी शिकायतें बहुत होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया और शुगर बढ़ गई। इस सिलसिले में कुछ शेर सुनिए। किसी साहब को कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की शिकायत थी, हमेशा से मुरक्कन चटपटा खाने की आदत थी, फकत खाने से और सोने से रहती थी गरज उनको। तो फिर लगी गए आखिर कई मोहलिक मरद उनको, न जॉगिंग थी न वॉकिंग थी न मेहनत कोई जिस्मानी, चरा कारे कुनद आकिल के बाद इधर सिस्टम के अंदर रंग दिखलाने लगी शुगर, उधर बढ़ने लगा था दिन ब दिन उनका ब्लड प्रेशर। हुए मायूस सब जब डॉक्टर ने उनको बतलाया कि अब पड़ने लगा है जिंदगी पर मौत का साया। बहुत मुमकिन है अफसाने का अब अंजाम हो जाए, न जाने किस गले में जिंदगी की शाम हो जाए। मगर बेगम सही मानों में उनकी निस्ब बेहतर थी, सलीके में समझदारी में अफजल और बरतर थी। लगाई उन पे जो पाबंदियां सब सिस्टमेटिक थी, छुड़ा डाली जो उनकी आदतें अनहाइजीनिक थी। बहुत सादी गजा हर रोज उनको खानी पीनी थी, मसाले थे न रोगन था, नमक था और न चीनी थी। फकत उबली हुई सब्जी वो लौकी हो कि हो भिंडी, बिला चीनी की हर एक चीज चाहे गर्म या ठंडी। उन्हें बीते दिनों की याद तो अक्सर सताती थी, मगर बेगम के आगे उनकी कुछ भी चल न पाता। कभी ख्वाबों में आकर मुर्गियां पर फड़फड़ाती थी, कभी टिक्के निहारी बोटियां जलवे दिखाती थी। मगर मेरी तरह वो भी जरा बेगम से डरते थे, न जी चाहे मगर फिर भी जो बेगम कहते वो करते थे। मगर गुजरा जो कुछ अरसा सेहत होने लगी बेहतर, हुआ कुछ वजन भी कम, आ गई रौनक भी चेहरे पर। रहे वो और जिंदा 10 बरस, फिर हो गए रुखसत, मियाँ बीवी हुए फिर आगे पीछे दाखिले जन्नत। वहां हर एक नियामत के खजाने हर तरफ देखे, मुरक्कन चटपटे खाने भी थे एक सिमत को रखे। ये बोले ऐसे खानों का मजा पा नहीं सकता, मैं परहेजी गजा वाला हूँ, इनको खा नहीं सकता। फरिश्ते बोले यहाँ बीमारी आजारी नहीं होती, जो जी चाहे वो खाओ, कोई दुश्वारी नहीं होती। आखिरी दो शेर है, ये सुनकर वो मुड़े गुस्से में और बेगम से फरमाया, तुम्हारी ही वजह से इतने दिन वहां पर गुजारा। दुनिया से छुटकारा कभी का पा चुका होता, वहां से 10 बरस पहले यहाँ में
भाई मंजिले तो पहुंचा के थोड़े मंजिले पूरा लंबी नज़्म है। कोई बात भाई हुआ यह था कि वहाँ फतेहपुर में मुशायरा था रात को, और रात में मंजिलेपुर के एक नवाब साहब कहे जाते थे, नवाब साहब आए थे, कहते भाई कल आमों की दावत है, आप हमारे यहाँ है। तो फतेहपुर से 8 मील पे गंगा दरिया है, दरिया उस पार मंजिलेपुर था, तकरीबन 1.5-2 मील पे। इधर तो खैर सड़क वड़क थी। खैर हम लोग कई शायर, भाई फरा साहब भी थे, नशूर साहब भी थे, और बहुत शायर थे, 2 खवातीन शायरात में थी, सब लोग होते। यहाँ तो सड़क थी, उस तरफ 1.5-2 मील में सिर्फ जंगल था, कांटेदार झाड़ियाँ और जंगली जानवर, ये सब सियार, गीदड़ और नीलगाय। लेकिन उन्होंने एक कच्चा रास्ता, तो उन्होंने बैलगाड़ियों पे गद्दे डलवा दिए थे, हम लोग बहुत आराम से पहुंच गए। 11-12 बजे पहुंच गए। दिन में दावत हुई, ठाठदार आम खूब खाए गए, फिर नशिस्त हुई। 3:30-4 बजे वापस हुए। बीच जंगल में थे कि साहब तूफान आ गया और पानी बरसा है, बैलगाड़ियों के पहिए धस गए जमीन में, सब पैदल हो गए। उसका हाल लिखा है साहब। हम तो मंजिलेपुर हमेशा याद रखेंगे तुझे, इस कदर कांटे चुभे हैं अब न भूलेंगे तुझे। तेरा ऊसर, तेरा जंगल और वो बीहड़ कछार, और फिर उसमें वो आंधी और तूफान की बहार। जब चले तो क्या हंसी मौसम था, क्या रंगी समा, सर पे छाई काली काली ऊदी ऊदी बदलियां, हल्के हल्के नर्म रो ठंडी हवा चलती हुई, पत्तियों और टहनियों की झांझरें बनती हुई, नन्ही नन्ही बूंदियों की नर्म पत्तों पर चमक, हर कदम उठती हुई वो सूंधी मिट्टी की महक। ये सब देहाती आदमी समझ सकते हैं। क्या ही रूमानी फजा थी, वज्द में थी अपनी रूह, और क्या खबर थी ताक में बैठा एक तूफान नूह। बीच जंगल में थे जब तूफान आया अल्लमा, वो गरजते बादलों में कड़कड़ाती बिजलियां, चीखती चिंगारती पागल हवाएं फट पड़ी, मेघ के दरिया लिए काली घटाएं फट पड़ी। कर दिए बारिश ने जलथल, खेत पेड़ पौधे खेत गांव, नालियां नाले बने, तालाब हुए हाथी डुबाओ। मोर तीतर लोमड़ी खरगोश गीदड़ नीलगाय, झाड़ियों में और बिलों में जा छुपे गर्दन छुपाए। हम में जो थे इख्तिलाजी वो बहुत घबरा गए, दूर से जब भेड़िए भी एक झलक दिखला गए। अपने हमसे फरदानों की टोली रागनी गाती हुई, तेज पंचम के सुरों में सुर को इठलाती हुई। हर चमक पर एक नारा, हर गरज पर एक तान, होश पर थी अपनी हिम्मत और निराली अपनी शान। रास्ते का सारा कीचड़ लग के फिर धुलता हुआ, सर से लेकर पैर तक सैले रवां चलता हुआ। शाद की टोपी गिरी, रास्ते का सारा कीचड़ लग के फिर धुलता हुआ, और सर से पाक तक मुस्तकिल सैले रवां चलता हुआ। राज की ऐनक गिरी, जौहर की टोपी बह गई, शाद की माचिस मेरी सिगरेट की डिब्बी बह गई। गिरने पड़ने में मुजफ्फर और कमर थे साथ साथ, जोर से पकड़े हुए हसनैन थे सागर का हाथ। और शर्ट कच्चे रंग की और उस पे ये बारिश शदीद, बन गए एक आन में टेक्निकलर हीरो वही। पायचा कोई चढ़ाए पकड़े जूते हाथ में, कुछ की पतलूने थी कांधों पर, कमीसें साथ में। बाज पाजामे सिकुड़कर बन गए अंडरवियर, भीग कर चप्पल किसी की हो गई मिसले रबर। और जिस शेर सुनिए, जिस्म से चिपके थे कपड़े मौसमे नमनाक में, जैसे कुछ मजजूब घूमे कुदरती पोशाक में। कोई फिसला और गिरा और फिर समझ कर उठ गया, कोई फिसला तो मगर फिर डगमगा कर रह गया। शायरा का पानदान उल्टा मगर अब क्या करें, कत्था चूना हो गए शीरो शकर क्या करें। आँख का काजल बहा, पाउडर की सुर्खी बह गई, नेल पॉलिश और लिपस्टिक की निशानी रह गई। सब तकल्लुफ एहतियातें नजर तूफा हो गई, इसकी जुल्फे उसके शानों पर परेशान। नौजवानी की उमंग अटखेलियां जौलानियां, सूझती थी चुलबुलाती नित नई शैतानियां। एक के मेदे में मुर्गा कर रहा था खूब शोर, एक के मेदे में मुर्गा कर रहा था खूब शोर, और लगाए था अलग
आमों का कोटा अपना दो। सोचता था वो बड़ी है अपनी मुश्किल, क्या करूं ऐ गमे दिल क्या करूं मैं वैसे। पेट पकड़े सांस खींचे था मगर मुंह लाल था, ये मुरक्कन दावतों का नाम है अमान। और तखलिया मिलना था जैसे मिलना जुए शीर का, कागजी था पैरहान इस पे करे। दूसरे हंस के उसके ले रहे थे चुटकियां, और ठोसो शीर माले और में बिरयानियां। अब सफाई के लिए लोटा कहाँ से आएगा, बैठ जाओ ऐसे ही सब कुछ यूं ही धुल जाएगा। उसके हाले जार का सभी मजा लेने लगे, उसके हाले जार का सभी मजा लेने लगे। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा अब घाट पर पहुंचे तो मौजें जैसे बौलाई हुई। उफ वो गंगा की जवानी जोश पर आई हुई। क्या कहूँ कैसा था उन तूफानी लहरों पर सफर। क्या बात। वो तलातुम खेज मौजें जिनमें थे सौ सौ भंवर। याद थी जितनी दुआएं नजरे तूफान हो गई, मुश्किलें इतनी पड़ी हम पर। खैर उतरे खैरियत से उस किनारे घाट पर, जैसे हम सब आ रहे हों बहरे कुलजुम फांद कर। साहिरो नाशाद कहते हैं ये खा खा कर कसम, कान पकड़े अब नहीं जाएंगे मजले पूर हम। लेकिन अपना तो अकीदा है सुहेले नगमाबार, ऐसे ही लम्हे तो बन जाते हैं एक दिन यादगार। मेहरबां है तो कभी ना मेहरबां है जिंदगी, जाविदा पैहम दवा हरदम रवा। हाँ सुनिए साहब, एक और नज़र मुलाहिजा करें। दास्तान एक बेचारे शौहर की। एक साहब ने अपनी दास्तान हमसे बताई, भाई इसको लिख लें। आ गए अमेरिका जब हम छोड़कर अपना वतन, नौ गिरफ्तारे कफस थे हम अजीजादे चमन। हम वही अपनी बेढंगी चाल ही में मस्त थे, जैसी आदत थी कि अपनी खाल ही में मस्त थे। पर यहाँ बेगम ने ज्वाइन कर ली इंग्लिश की क्लास और मुकम्मल की उमूरे खानदारी की क्लास। क्या बताएं हम पे ये कैसी मुसीबत आ गई, मॉडर्न तालीम की सूरत में शामत आ गई। सबसे पहले लिस्ट पर उनकी हम ही थे बेशऊर। नजला तो कमजोर पर गिरता सदा से है हुजूर, और कोई काम अब बाकी नहीं है उनके पास। रोज अब घर में वो लेती हैं फकत मेरी क्लास। हमसे बेगम ने कहा मॉडर्न बनना सीख लो, इस नई दुनिया में कैसे होकर रहना सीख लो। हम समझते थे कि ये परदेश अपना देश है, जानती थी वो बहुत बिगड़ा हुआ ये केस है। छींक अगर आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मत कहो, उसके बदले माजरत एक्सक्यूज मी कहकर करो। बात खाने के अगर ली मैंने एक ऊंची डकार, मेरी ऐसी हरकतों से उनको चढ़ता है बुखार। हम भला क्या बोल सकते उनकी इन बातों के बाद, हम के ठहरे अजनबी इतनी मुलाकात। ये खुदा का हुक्म है मर्दों पे सोना है हराम, और यहाँ बेगम के हाथों अपना सोना है हराम। देश में जब थे तो दिन के 10 बजे उठते थे हम, और फिर 12 बजे तक ऐंठते रहते थे हम। अब ये आलम है कि तड़के जागना मुर्गों के साथ, जाना फिर वॉकिंग को और आके लेना रोज बात, और उस पर हुक्म कोई कतरा बाहर गिर न पाए। अब भला कैसे कोई मुंह धोए और कैसे नहाए। बोलने में नल को या शावर को डर जाते हैं हम, जैसे थे वैसे ही बस बाहर। और उस पर हुक्म बाहर कोई कतरा गिर न पाए। अब भला कैसे कोई मुंह धोए और कैसे नहाए। खोलने में नल को या शावर को डर जाते हैं हम, जैसे थे वैसे ही बस बाहर। हाथ घर लग जाए खाने में तो कारे जाहिला, कटलरी ही का है इस्तेमाल करे आकिला। चाय की अब जोर से चुस्की लगाना है मना, इस कफस के कैदियों को गुल मचाना है। हाथ से और उंगलियों से खाना खाना है मना, डूब जा तूफान में साहिल पे आना है मना। वो छुरी कांटे का इस्तेमाल हाथों के बजाय,
अब छुरी से काटो बोटी अपने दांतों के बजाय। अब मेज पर खाने की बैठे हम छुरी कांटे के साथ, मेज पर खाने की बैठे हम छुरी कांटे के साथ, की बहुत सी कोशिशें पर कुछ ना आया अपने हाथ। क्या शेर सुनिए, क्या पकड़ पाते उन्हें जो शोरबे में थे मटर, पहले ईमा की तरह डूबे इधर निकले उधर। क्या पकड़ पाते उन्हें जो शोरबे में थे मटर, पहले ईमा की तरह डूबे इधर निकले उधर। अब फिसली एक बोटी तो था जश्ने बहारा का समा, फिसली एक बोटी तो था जश्ने बहारा का समा। हर तरफ बिखरा गई रंगीनियां गुलकारियां। अब था दिगरगू हाल मुझ नाचीज पुर तकसीर का, मुद्दा उनका था उनके आलम तकरीर का। खैर गुजरी फट न पाया उनका वो आतश विशा, लेकिन हर अंदाज में खामोश थी सब बिजलियां। गालिब के मिसरे में तज़मीन है कि डांट खाने के अलावा और कोई खतरा न था, धौल धप्पा उस सरापा नाज का शेवा था। और चमचे काटे मुंह में बस आया किए जाया किए, सारे जलवे दूर से नजरों को तरसाया। क्या डिशें थी खुश मजा खाने सभी आया किए, कारवां गुजरा किया हम रह गुजरते का। और क्या उंगलियों से चोरी चोरी काम तो लेते थे हम, उनकी नजरों से बचाकर कुछ उचक लेते थे हम। दिल के कुछ अरमान तो खैर अपनी मंजिल पा गए, हसरत उन गुंचों पे है जो बिन मिले मर जाए। अब क्या आखिरी 3 शेर हैं। क्या बताए दोस्तों शौहर का जो हाल है, ये नई तालीम है या शामते अमाल है। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। एक 2-4 शेर और सुन लीजिए भाई। एक साहब ने नजूमी से कहा, ये तो बता, कह रहा है क्या सितारा मेरी तकदीर का, होती है दाई हथेली में मेरे खुजली बहुत, ये बता मेरा मुकद्दर क्या मुझे दिखलाएगा। जायचा देखा नजूमी ने तो बतलाया उन्हें, ये निशानी है तुझे पैसा बहुत मिल जाएगा। फिर कहा बाई हथेली में भी खुजली है तो कहा कि सब ये पैसा खर्च भी हो जाएगा। फिर कहा कि दाहिने तलवे में खुजली है बहुत, तो ये बतलाया कि तू लंबे सफर पर जाएगा। फिर कहा कि बाएं तलवे में भी खुजली है बहुत, तो कहा तू इस सफर से जल्द वापस आएगा। फिर कहा कि पीठ में भी मेरे खुजली है बहुत। तब नजूमी ने बहुत झंझला के ये उनसे कहा, तू कहां से आ गया है कान खाने के लिए, तुझको खारिश का मरज है डॉक्टर के तमन्ना एक साहब को बहुत थी कि बीवी भी करे तारीफ उनकी, मगर बीवी उन्हें कुछ भी न समझे। वो हर काम में कीड़े निकालें। ये थे इस फिक्र में गर हो ये मुमकिन, दिखाऊं कारनामा कोई एक दिन। बड़ी कोशिश से सीखा एक मंत्र कि उड़ सकते थे वो जिससे हवा पर, उड़े घूमे फिरे वो शहर भर पर, कई चक्कर लगाए अपने घर पर। उतरकर शाम को जब घर ही आए तो बीवी ने बड़े लेक्चर पिलाए, अरे तुमसे कभी कुछ हो सका है, बजू सोने के तुमने क्या किया है। यहाँ पर एक अजूबा सबने देखा कि एक इंसान हवा में उड़ रहा था। ये बोले जानेमन खादिम तुम्हारा यही था जो हवा में उड़ रहा था। कहा बीवी ने अच्छा तो ये तुम थे, तभी कुछ टेढ़े टेढ़े उड़ रहे। कुछ दूसरे लोग भी कुछ सुनाए? नहीं बस आप सुनाते रहे। एक हमारे एक दोस्त अमीन हैदर साहब हैं, आज नहीं आ पाए वो सर्जरी मिली है। वो एक जमाने में जद्दे में थे तो कहने लगे कि वहाँ मुशायरा हुआ इंडिया, तो दूसरे रोज जो खबर छपी उसमें था कि भाई शायर इतने ज्यादा थे कि कॉलम में जगह नहीं है, 2 सामीन थे उनके नाम लिखे गए।
मैंने उसमें 2 शेर लिख के उसको दे दिए थे, आप लोग सुनाते हैं। बहुत शहर में कल रात एक हाल में शेर व सुखन की एक महफिल थी, कैफ व सुरूर का आलम था, हम अब तक उसमें बहे जाते हैं। शायर तो इतने ज्यादा थे, कालम में अब जगह नहीं है, सामीन बस 2 थे वहां पर जिनके नाम लिखे जाते हैं। वो सुना दे नौ मुस्लिम वाला। अच्छा है, चले साहब एक जरा अच्छा थोड़ी सी संजीदा सुन ले। असल में एक नौ मुस्लिम के कबूल इस्लाम है, अक्सर खबरें आती हैं कोई अमेरिका मुसलमान हो गया, यूरोप में मुसलमान हो गया, मुख्तलिफ लोग, इनको अल्लाह हिदायत दे दे, तौफीक दे दे, तो खुशी तो होती है बाहर, लेकिन मेरे दिल में थोड़ी सी तशवीश जरूर हुई, थोड़ी संजीदा सुनिए। एक पुराना शेर है, किसी उस्ताद का शेर है, एक तरफ काबा था, एक सिम सनम खाना था, और सालिके राह तलब बीच में दीवाना था। मैंने इसी से शुरू किया है और इसी पर खत्म किया है। एक तरफ काबा था, एक सिम सनम खाना था, और सालिके राह तलब बीच में दीवाना था। फजल रब्बी जो हुआ उसने हिदायत पाई, दीन इस्लाम में आने की सआदत पाई। उसकी आमद से तो है हर दिल मुस्लिम मसरूर, पर मेरे दिल में है एक छोटी सी तशवीश जरूर है। अभी उसने जरा दूर से देखा हमको, क्या वो सोचेगा जो नजदीक से देखा हमको। कुछ तो अपने ही ख्यालात हवा देते हैं, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। वो तो समझाता हमारे हैं दिलो जान भी है, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी है, एक ही सब का नबी, दीन भी, ईमान भी है, तो जरूरी है कि सब होंगे मुसलमान भी है। पर यहाँ आवे का आवा है सलासर बिगड़ा, रोज एक मसला, हर रोज नया एक झगड़ा। सोचता होगा मिले राह हिदायत कैसे, इतनी पगडंडियां हैं भूल भुलैया जैसे। मैं हूँ सुन्नी के शिया हूँ कि वहाबी हूँ मैं, बामल भी हूँ कि बस सिर्फ किताबी हूँ मैं। जब न सैयद हूँ न मिर्जा हूँ न अफगान हूँ मैं, फिर भला कैसे बताऊं कि मुसलमान हूँ मैं। मुत्तहिद रहने की हमको है हिदायत किसनी, मुत्तहिद रहने की हमको है हिदायत कितनी, या हर एक शख्स की 1.5 ईंट की मस्जिद अपनी। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, अब जमाने में चमकने की यही बातें हैं। कुछ तो आंच ऐसी अकीदे की खड़ी रखते हैं, आग तकफीर की सीनों में भरी रखते हैं। गैर तो फातह अफलाक बने बैठे हैं, हम अभी चांद के झगड़े में फंसे बैठे हैं। गैर तो फातह अफलाक बने बैठे हैं, हम अभी चांद के झगड़े में फंसे बैठे हैं। देख कर ईद करूं या कि कैलेंडर मानूं, इन लोगों ने कैलेंडर छाप दिया इसना वालों ने। देख कर ईद करूं या कि कैलेंडर मानूं, या खबर अपने ही मुल्कों के मुकद्दम जानूं। कोई कहते हैं हमारे मुल्क में होगी हम करेंगे, अरब में होगी तो हम करेंगे, फलानी जगह होगी। तो गैर तो फातह अफलाक बने बैठे हैं, हम अभी चांद के झगड़े में फंसे बैठे हैं। देख कर ईद करूं या कि कैलेंडर मानूं, या खबर अपने ही मुल्कों के मुकद्दम जानूं। अनगिनत हैं ये सवालात, खुदा खैर करे और दुनिया के ये हालात। खुदा खैर करे, एक तरफ काबा है, एक सिम सनम खाना है, सालिके राह तलब बीच में दीवाना। चले एक छोटी सी नज़म और सुन लीजिए भाई, 2-3 ऐसे कुछ अशार और सुन लीजिए। शेर की बारात में चूहा भी शामिल हो गया, मूंछ ऐठे पूंछ उठाए जुज़्व महफिल हो गया। शेर ने गुर्रा के डांटा, क्यों रे चूहे बदखसाल, तू हमारी बज़्म में शामिल हो, तेरी ये मजाल। अर्ज की चूहे ने, मेरी बात तो सुन ले हुजूर, आप ही की जात का हूँ, शक्ल बदली है जरूर। मेरी शादी क्या हुई, मेरा कबाड़ा हो गया, पहले मैं भी शेर था पर अब मैं चूहा हूँ। और सुनिए, बाप और बच्चे के डायलॉग। बच्चा है, बाप से डायलॉग। अब्बू, क्या मेरी दादी अम्मा अगले हफ्ते आएंगी? हाँ बेटा, तेरी दादी अम्मा अगले हफ्ते आएंगी। अब्बू, क्या दादी अम्मा ने टीवी में भी काम किया है? नहीं तो बेटा, किसने कहा कि टीवी में भी काम किया है?
अब्बू अम्मी कहती थी अब खूब तमाशे हुआ करेंगे, बुढ़िया आने वाली है, रोज ड्रामे हुआ करेंगे। एक और देखो, वहाँ हमारी वाइफ वहाँ कराची में टीचर थी, तो उन्होंने स्कूल का एक छोटा सा लतीफा सुनाया था, मैंने उसको भाई लिख दिया जी। क्लास में उर्दू के घंटे में टीचर ने ये सवाल किया, बच्चों इस्तेमाल करो जुमले में लफ्ज मुतालिया। एक बच्चे ने थोड़ा सोचा, फिर जुमला ये सुना दिया, रात को अम्मा मुझसे बोली जा मुन्ने को मुता लिया। जब शुरू में जब अमेरिका आ गए तो यहाँ कुछ तजुर्बे, नई दुनिया, नया जमाना, तो हमने उस पर कुछ अशार लिखे। कोहे निदा से बुलावा, मॉडर्न कोहे निदा से बुलावा। हातिम ताई के किस्सों में कोहे निदा होता है, वहां से या आखी की आवाज आती है, जिसका नाम होता है वो दौड़ने लगता है उसकी तरफ। तो हमने कहा भाई ये अमेरिका अब कोहे निदा है, लोग सब छोड़ छाड़ के हर चीज जायज नाजायज हर तरीके से भागे चले जा रहे हैं, हम भी उन्हीं में शामिल थे। तो जरा कुछ अशार है। कोहे निदा से बुलावा आया, ग्रीन कार्ड का मुर्दा सुनाया, बोरिया बिस्तर हमने उठाया, यहाँ पे आकर डेरा जमाया। हमने भी अमेरिका देखा, दूसरों ने भी दिखाया देखा, उल्टा देखा सीधा देखा, सुनिए साहब क्या क्या देखा। लैंड ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी, लैंड ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी, लिंकन वाशिंगटन की धरती, खुशहाली आजादी की बस्ती, हर नियामत है यहाँ बरसती। अमन यहाँ है, सुकून यहाँ है, पाबंदी कानून यहाँ है, कदर उलूम फनून यहाँ है, ईजादों का जुनून यहाँ है। दुनिया भर पर राज करे हैं, कितनों को बेताज करे हैं, तेजी से हर काज करे हैं, कल करना था आज करे हैं। जिससे बिगड़े खाक चढ़ा दें, जिसको चाहे सर पे चढ़ा दें, गीदड़ को ये शेर बना दें, जिससे बिगड़े खाक चढ़ा दें, तिगनी का ये नाच नचा दें। टहल रहे हैं चांद के ऊपर, खला में चक्कर पर है चक्कर, पावर में हर मुल्क से बढ़कर इनका ठेंगा सबके सर पर। काम बहुत बेसबब यहाँ है, सब सामाने तरब यहाँ है, ऐश के रस्ते अजब यहाँ है, नंगों के भी कलब यहाँ है। अब्बा की तहकीर भी देखी, कुत्तों की तौकीर भी देखी, अब्बा की तहकीर भी देखी, कुत्तों की तौकीर भी देखी, ताजीमे खिंजीर भी देखी, ये उल्टी तस्वीर भी देखी। मीडिया का यहाँ बोल है बाला, जहां भी चाहे कर दे घोटाला, आग लगाए मूंछों वाला, पकड़ा जाए दाढ़ी वाला। खासकर इशारा है 9/11 के वाक़े के बाद, आज तक नहीं साबित हो सका, लेकिन बेचारे दाढ़ी वालों की, हम हुए तुम हुए कि मीर हुए सब। आग लगाए मूंछों वाला, मूंछों वालों तो आपकी तरफ इशारा नहीं है। अच्छा, यहाँ आकर के कुछ अजीब तजुर्बे हुए। हम लोग तो इंडिया पाकिस्तान के पढ़े हुए, ब्रिटिश सेमी एंटी, या हमारे पास एंटी नहीं एंटाई, सेमी नहीं सेमाई। मैं यहाँ नौकर हो गया, दफ्तर में मुझे ट्रेनिंग दे रहे थे, कहले पीरियड, मैं ढूंढो पीरियड मैंने कहा फुल स्टॉप है भाई। ये सब हुआ। सुनिए, सेमी को सेमाई बोलो, एंटी को एंटाई समझो, शेड्यूल को स्केजुअल जानो, फुल स्टॉप को पीरियड मानो। चल, जाप करे हैं जिनकी बेगम, नखरे फैशन बढ़ते हरदम, मेरे लिए अब टाइम है कम, टुक टुक दीदम दम न कशीदम। बंद बनाना करें, बरखुरदार है सबसे बढ़कर, गले में जेवर कान में जेवर, टैटू सारे जिस्म के ऊपर, पहन के घूमे शरई नहकर। आप लोगों ने बरमुदा देखी होगी। अगर अपनी औलाद को डांटो तो थाने के चक्कर काटो, फिर औलाद से माफी मांगो, अपने घर में बगलें झांको। मेकअप क्या हैरान करे है, खंडर को चमनिस्तान करे है, बूढ़ी को ये जवान करे है, बुड्ढों को हलकान करे है। कैसे कैसे देखे मंजर,
क्या बतलाएं तुमको ब्रादर, लाया हमें तकदीर का चक्कर, गलत उम्र में सही जगह पर। अपने देश से शायर आए, जाकिर आए, मुकर्रिर आए, नौकर आए, ताजिर आए, फनकार आए, मुसव्विर आए, साथ में लाए रंगी रातें, शेर और नगमे की बरसातें, दकिन से आई 2 सौगातें, खट्टे सालन मीठी बातें। बहुत सुहेल अब मत घबराओ। रह गया भाई, एक बार रह गया। जब भी कोई हमारी ख्वातीन तो जानती हैं, जब भी कोई त्योहार जो आए, चीजों की कीमत गिर जाए, खरीदी चीज पसंद ना आए, बेझगड़े वापस हो जाए, अपने आप भला सोच सकते हैं आप? बाजार एक दीवान यहाँ है, भाई हम शिकागो की बात कर रहे हैं, बाजार एक दीवान यहाँ है, देश की कुछ पहचान यहाँ है, जलवा हिंदुस्तान यहाँ है, शान पाकिस्तान यहाँ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ की रौनक सबने बढ़ाई, देश में चाहे करे लड़ाई, यहाँ पे सब है भाई भाई। है तो लंबी ना कहा गया। बहुत सुहेल अब मत घबराओ, यहाँ की खूबियां भी अपनाओ, उसी में अपनी राह बनाओ, वरना बुद्धू घर को जाओ। एक और जरा मेरे देश से चंद कॉलेज के लड़के थे, तालीमी दौरे पे अमेरिका आए। जो उस्ताद थे साथ में उनके आए, बड़े नेक थे और अल्लाह वाले। कई दिन तो सबके ट्रेनिंग में गुजरे, चले एक दिन शहर की सैर करने। नसीहत की उस्ताद ने, मेरे बच्चों बुराई से खुद को सदा दूर रखो, बहुत ही अजब है ये मॉडर्न बस्ती, बहुत ही बुलंदी बहुत ज्यादा पस्ती। ये सोसाइटी, ये जमाना नया है, यहाँ का तो माहौल ही दूसरा है। यहाँ औरतें तो हैं मर्दों से बढ़कर, है कपड़े पहनकर भी जामे से बाहर, है आजाद सभी जमा हो कि बुढ़ी, कोई पहने नेकर कोई सिर्फ चड्डी। न शर्मो हया का निगाहों का पर्दा, न टांगों का पर्दा, न बाहों का पर्दा। अगर ऐसे मंजर कहीं तुम जो देखो तो लाहौल पढ़कर निगाहें झुका लो। चले खैर सब देखने को नजारे, चले जा रहे थे सड़क के किनारे। अचानक जो था नौजवान सबसे आगे, पढ़ा उसने लाहौल ऊंची जुबान से। सभी बोले क्या तेज तेरी नजर है, किधर है किधर है किधर है। एक भाई नज़म और सुन ले, पब्लिक जाने लगी बहुत। अमेरिका में हमारी पहली ईद हुई साहब, खूब बर्फबारी खूब हुई थी। याद है हमको जो अमेरिका में थी अपनी ईद, यानी इस खानुमा बर्बाद की वो पहली ईद। खूब बहसें हुई तब ईद कहीं आई थी, फिर भी वो सारे शिकागो में नहीं आई थी। हमको डर था कि अभी सख्त घड़ी आएगी, ईद आई है तो कुछ खर्च भी करवाएगी। अपनी तनख्वाह में पहले से भी तखफीफ हुई, जाब तो खत्म था, लेआफ की तकलीफ हुई। और लेआफ से हर शख्स को अल्लाह बचाए, वास्ता अगर कभी शैतान को इससे पड़ जाए। चंद ही रोज में हम पाए इंसान हो जाए, और उसे शिकवे कोताही दामा हो जाए। ईद तो आई मगर बर्फ की सौगात लिए, दांत बजते थे कई रागों के नगमात लिए। ऐसी सर्दी थी कि बस वो छोड़े जाते थे, कुल्फियों की तरह हम खुद ही जमे जाते थे। सैंड से रेशमी रुमाल बसाया हमने, सुरमये नूर नजर लगाया हमने। पहना सूटर भी था, मफलर भी था, कंटोप भी था, सूट भी पहना था, एक गर्म ओवरकोट भी था। घर से हम निकले पहन ओढ़ के भालू बनकर, हर तरफ बर्फ के टीलों का अनोखा मंजर। अपने औसान मगर फिर भी न छोड़े हमने, बर्फ के दश्त में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हाल में पहुंचे तो हम रह गए चक्कर खाकर, हमने काहे को कभी देखा था ऐसा मंजर। साड़ियों और गरारों की थी हर सिमत बहार, हर तरफ मेकअप और जेवर का था मीना बाजार। मैं ये समझा कि ये शादी की है कोई तकलीफ, पर न दूल्हा न दुल्हन कोई भी दूर और करीब। मैं ये समझा कि ये शादी की है कोई तकरीब, पर न दूल्हा न दुल्हन कोई भी दूर और करीब। लाख कोशिश करूं पर हूं मैं बशर क्या कीजिए, उठी जाती थी उधर को भी नजर क्या कीजिए।
अपने मजहब का यहाँ पड़ गया कुछ और ग्रेड कि नमाजों में भी होने लगी फैशन की परेड। यानी मॉडर्न भी है, पैरवे इस्लाम भी है, आम के आम भी है, गुठलियों के दाम भी है। पर खुशी इसकी है मजहब से मोहब्बत है इन्हें, दीन की राह पे चलने की सआदत है इन्हें। एक कमरे में खड़े हो गए महमूद और यार, दूसरे कमरे में थी माँ जबीनो महनाज। थे इमाम अपने कहा, उनको न देखा हमने, देखा तस्वीर को और कर लिया सजदा हमने। नहीं थे इमाम अपने कहा, उनको न देखा हमने, देखा तस्वीर को और कर लिया सजदा हमने। नई दुनिया के नए ढंग, नई बातें हैं, अब नए दिन है सुहेल और नई रातें। हाँ जनाब, मंजलेपुर का तूफानी मुशायरा तो आप पहले सुन चुके। अब शिकागो का तूफानी मुशायरा मुलाहिजा करें। गालिब के मिसरे से शुरू किया है। मंजूर है गुजारिश अहवाल वाकई, अब दास्तान सुनिए शिकागो की एक नई। ये है जनाब लुत्फ भरा एक तस्करा, यानी हुआ था टेंट लगाकर मुशायरा। जब कुछ नहीं शिकागो के मौसम का एतबार, ये तो वही मसल हुई आ बैल मुझको मार। इस बज़्म में था हजरत हामिद का इंतज़ाम। हामिद हमरोवी साहब मेरे दोस्त हैं, उनका उन्होंने किया था। ये इस बज़्म में था हजरत हामिद का इंतज़ाम। इनवाइटेड थे सारे ही शोराए खुश कलाम, थे अहले ज़ौक़ अहले अदब माहिर ज़ुबान, सारी क्रीम शहर की मौजूद थी वहाँ। शेर सुनिए, शायर सभी थे अब्रे गोहर बार की तरह, तो हम भी वहाँ थे साये दीवार की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना है। शायर सभी थे अब्रे गोहर बार की तरह, और हम भी वहाँ थे साये दीवार की तरह। बज़्मे सुखन पे आने लगा था बड़ा निखार, उठती थी वाह वाह की आवाजें बार बार। ये हाल था कि तेज हुई यकबयक हवा, हर सिम काले बादलों की छा गई घटा। हम दाद शेर सुनिए, हम दादे शेर दे ही रहे थे उठा के हाथ, के आधा मिसरा उड़ गया बादे सबा के साथ। और अंदाजे शेर खानिये यारा न पूछिए, और उस पे छेड़ खानिये तूफान न पूछिए। क्या बात, सुभान अल्लाह। जज्बात उबल रहे थे दिले बेकरार में, और जंगल के शेर गूंज रहे थे कचार में। क्या बात, ये काफिला घटाओं का तूफा बदोश था, एक जोश था कि महवे तमाशाए होश था। सुभान अल्लाह, क्या अब बूंदों ने गो शुरू किया अपना जल तरंग, लेकिन न फीका कर सकी बज़्मे सुखन का रंग। सुभान अल्लाह। हम सब खिसकते फिरते थे सीटें बदल बदल, आए कुछ ने पढ़ी वहाँ कई किस्तों में गजल। क्या अच्छा है। हम सब खिसकते फिरते थे मंजर कैसी है। सीटें बदल बदल, कुछ ने पढ़ी वहाँ कई किस्तों में गजल। ये तो नहीं कहेंगे कि सकता था शेर में, हाँ ये मगर कहेंगे कि वक्फा था शेर में। वाह 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 वाह, क्या है। ऐसी चली हवाएं कि खेमे उखड़ गए, भगदड़ में मीरो गालिबो इकबाल लड़ गए। सुभान अल्लाह। खंबे गिरे हुए थे तो खेमे हटे हुए, और काफिर घटा के सामने मोमिन डटे हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और डर था कि खंबे अपने ही सर पर कहीं ना आए, हम बेनियाज़े गर्दिशे दौराई हो न जाए। वाह वाह वाह। और ढूंढे पनाह के तो ठिकाने नए नए, दो तो वहीं गिरे हुए खेमे में घुस गए। और तूफान पर थी हजरत हामिद की भी नजर, रोके हुए थे अपनी दुआओं के जोर पर। जिस वक्त शेर खानी की महफिल हुई तमाम, सब चल पड़े जिधर को था खाने का इंतजाम। हम सब थे पेड़ पूजा का अरमा लिए हुए, मौसम मगर तहैये तूफान की। खाना प्लेट में थे लिए सब वहां खड़े, इतने में आसमान से दरिया उबल पड़े। खाना बहुत था और मजेदार भी बहुत, और बारिश की बढ़ती जाती थी रफ्तार भी बहुत। और गिरने लगे प्लेट में कतरे बड़े बड़े, गिरने लगे प्लेट में कतरे बड़े बड़े। मिनटों में पानी पानी थे छोले दही बड़े। क्या अच्छा कहा है। और मुर्गी उछलती फिरती थी आइसक्रीम में,
मुर्गी उछलती फिरती थी आइसक्रीम में और बिरयानी तैरती थी मजे से हलीम में। क्या वाह। कशी है, वाह वाह क्या बात हम खा रहे थे ऐसे कि जैसे हो ख्वाब में, हम खा रहे थे ऐसे कि जैसे हो ख्वाब में, हलवे का टेस्ट आता था शामी कबाब भाई, में। वाह वाह वाह, क्या मेनू को डिस्क्राइब किया और क्या। और जो चटपटी सी चीज वहां हमने खाई थी, हाँ। मुलाजा करें, जी 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 जो चटपटी सी चीज वहां हमने खाई थी, ये बाद में पता चला वो रसमलाई थी। वाह वाह और केचप से खीर मिर्च शक्कर से लिपट गई, है। क्या अच्छा केचप से खीर बहुत सुंदर। मिर्च शक्कर से लिपट गई, खानों में रंगो नस्ल की दीवार हट गई। भाई वाह वाह, ये आप ही कहा था, आप ही कह सकते हैं। केचप से खीर मिर्च शक्कर से लिपट गई, वाह, वाह। खानों में रंगो नस्ल की दीवार दीवार हट मिट गई। गई। भाई क्या खूब कहा है। और हमको मिली पनाह फकत अपनी कार में, अरे 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। वाह वाह क्या बात है। फिर भी मुशायरा तो बहुत खूब हो गया, ये एक तजुर्बा तो बहुत खूब हो गया। और गर ऐसी बज़्म का हो कहीं फिर से इनेकाद, इस खाकसार को जरा कर लीजिएगा याद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हशमत साहब क्या कहने, वाह वाह वाह। एक और कुछ अता फरमाइए। एक और मुलाहजा करें कि मौलवी जन्नत में पहुंचे तो अजब थे सिलसिले, मौलवी जन्नत में पहुंचे तो अजब थे सिलसिले, नाश्ते में सुबह को बस चाय और पापे मिले, वाह झांक कर देखा जहन्नुम में तो ये आया नजर, देगे ही देगे खनकती थी जिधर देखो उधर, तैश में आकर किया फिर, तैश में आकर फरिश्तों से किया फिर यूं खिताब, उम्र भर जिंदगी तैश में आकर फरिश्तों से किया तब यूं खिताब, जिंदगी भर की रियाजत का सिला ये है जनाब। वाह। हम तो दुनिया में भी रूखी सूखी ही खाकर जिए, नियामतों की बारिशें थी सिर्फ गैरों के लिए, आए है। एक शराबी की लहद पर रात भर हंडे जले, वाह। बर मज़ारे माँ गरीबा नए चरागे सुभान देखे। अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अब यहाँ पर आ गए पर बदनसीबी साथ है, वहाँ अंधेरी रात थी यहाँ भी अंधेरी रात। इतना सुनकर तब फरिश्तों ने दिया उनको जवाब, आपका शिकवा तो सर आंखों पे है आली जनाब, हम हैं सप्लाई जरूरत के मुताबिक दे रहे, 4 बंदों के लिए देगे चढ़ाने से। आए, 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 आए। क्या बात है। उसकी रहमत से, आखिरी शेर है, उसकी रहमत से ये जन्नत जैसे ही भर जाएगी, हर तरफ देगे खनकने की सदा तब आएगी। वाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। वाह, वाह। एक और सुन लीजिए साहब, जरा से आजाद किस्म की नज़्म है। जी इरशाद अता फरमाइए। बीवी एक दिन लाड में बोली, ये तो जरा बतलाओ मुझे, मैं जो अगर मर जाऊंगी तो दूसरी शादी कर लोगे? शौहर बोले, जाहिर है तन्हा तो नहीं मैं रह सकता। फिर पूछा कि आने वाली क्या मेरे जेवर पहनेगी? शौहर बोले, नए जेवर तो उसको नहीं बनवा सकता। फिर पूछा क्या आने वाली मेरे बेड पर सोएगी? शौहर बोले, उसके लिए नया बेड तो नहीं बनवा सकता। फिर पूछा आने वाली क्या मेरे कपड़े पहनेगी? बोले कि नहीं, कपड़े तो नहीं, उसका कद तुमसे लंबा है। वाह क्या बात है साहब, वाह वाह वाह। बड़ा जबरदस्त पंच है आखिर में। जी जी अगर लोग उसको गौर से ना सुने। जी, आवाज से ना सुने तो निकल जाएगी गाड़ी। जी। बात जो है अपना समझ में सुनिए, इरशाद। हमारी जवानी और बुजुर्गों की निगरानी, जवानी जिनमें खोई है वो गलियां याद आती हैं, मनाई थी कभी जो रंग रलियां याद आती हैं, मगर उन रंग रलियों के फसाने क्या सुनाए हम, मगर उन रंग रलियों के फसाने क्या सुनाए हम, बड़ी पाबंदियों के थे जमाने क्या बताए हम। वाह जवानी की कली जब धीरे धीरे खिलने लगती थी, पुरानी नस्ल में खतरे की घंटी बजने लगती थी। वाह कयाफा देखकर वो आदमी पहचान लेते थे, लिफाफा देखकर वो खत का मजमून भाप लेते थे। क्या बात है। बुजुर्गों में थे ऐसे फील्डर, ऐसे विकेट कीपर, न कोई शॉट काम आती, न चौका या कोई सिक्सर, वाह कोई बाल उनसे छुटकर बाउंड्री तक जा न सकती थी, दरे महबूब तक कोई खबर हाँ। पहुंचा न सकती थी। क्या क्या बात है। वाह। दरे महबूब और बाउंड्री, वाह वाह वाह। अगर मिलने का वादा कर लिया उस शौक ने हमसे, तो ये जालिम समाज आकर के कूदा बीच में दम से,
ہماری رات میں سوتے میں بولی چارپائی بھی اگر کروٹ بدلنے سے ذرا سی چرچرائی بھی تو کوئی پاس سے کھاسا کہ ہم ہوشیار بیٹھے ہیں، تجھے اٹکیلیاں سوجی ہم بیدار بیٹھے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ، بتائیں کیا تمہیں اپنی عجب الٹی کہانی اسے تھی، کہتے ہیں نسلی امتیاز۔ بتائیں کیا تمہیں اپنی عجب الٹی کہانی تھی، جو استعمال کر سکتے نہ تھے ایسی جوانی تھی۔ واہ واہ واہ، ہماری لغزشوں کوتاہیوں کی نگہبانی تھی، ہماری زیز تھی پر اس پہ ان کی حکمرانی تھی۔ واہ، ارے جواں ہم کیوں ہوئے تھے گر یہی انجام ہونا تھا، جوانی ہی میں اپنی زندگی کی شام ہونا تھا۔ واہ واہ، نہ یہ کالج کی آزادی، نہ یہ مخلوط تعلیمیں، نہ ملنے کا کوئی موقع، بناؤ لاکھ اسکیمیں۔ واہ جی، ارے پتنگوں پر سلام عشق لکھ کر بھیجا جاتا تھا، کبوتر لے کے حال درد ہجراں آتا جاتا تھا۔ واہ، نہ تھے سیل فون جیبوں میں، نہ ٹیلی فون تھے گھر گھر، نہ تھا ای میل کا ذریعہ، نہ انٹرنیٹ، نہ کمپیوٹر، نہ محفل آج کی جیسی، نہ جگمگ ایسے تھے فنکشن، سنیما ہال تک میں تھا الگ لیڈیز کا سیکشن۔ کیا اچھا ہے۔ صدائے ساز ہستی میں، شعر سنیے، صدائے ساز ہستی میں کہاں تھی ایسی شیرینی، صدائے ساز ہستی میں کہاں تھی ایسی شیرینی، وجود زن سے ہے دنیا میں ہر جانب یہ رنگینی۔ واہ 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 واہ، ادھر گوشہ ادھر گوشہ، ادھر پردہ ادھر پردہ، تو مرجھا جاتا تھا خود ایک دن یہ عشق کا پودا۔ واہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوش تھا ماحول، دل ناشاد ہوتا تھا، غبار قیس خود اٹھتا تھا خود برباد ہوتا تھا۔ واہ، سبحان اللہ، نہ کوئی رائے اپنی پوچھتا تھا یا پسند اپنی، بزرگوں ہی کے ہاتھوں ڈالی جاتی تھی کمند اپنی۔ بھائی واہ واہ، بھائی پھر سنیے، نہ کوئی رائے اپنی پوچھتا تھا یا پسند اپنی، بزرگوں ہی کے ہاتھوں ڈالی جاتی تھی کمند اپنی۔ کیا بات ہے، وہ پتھر ہے کہ ہیرا ہے یہ کب معلوم ہوتا تھا، جب اپنی لاٹری کھلتی تھی تب معلوم ہوتا تھا۔ بہت خوبصورت، واہ واہ واہ، کیا عمدہ، اور نکلنے کو تو اکثر حد سے باہر بھی ہیں ہم نکلے، نکلنے کو تو اکثر حد سے باہر بھی ہیں ہم نکلے، مگر ارمان دل کی آرزو سے پھر بھی کم نکلے۔ واہ 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 واہ، آخری دو شعر ہیں کہ بزرگ اب اٹھ گئے اب تو ہم ہی ہیں خود بزرگ اپنے، ہے گھر چھوٹا سا پورے ہو نہ پائے اپنے وہ سپنے، ہے بیگم پاس ہی لیکن یوں ہی بیکار بیٹھے ہیں، جو برخورداریاں سوئیں تو برخوردار بیٹھے ہیں۔ واہ 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 واہ، بہت عمدہ، واہ واہ۔ سبحان اللہ، اچھا وہ ذرا ایک دم، ایک پرانی کہاوت، جی، ایک چینی کہاوت یا کوئی ایسی کہاوت ہے، اب مجھے پتہ نہیں، بہرحال وہ پرانی تھی، سنا تھا کہ اس میں جب ازل کے میں جب دنیا بنی تو ہر انسان اور پرندے اور چرندے اور درندے سب کو 20-20 سال کے، سوری 40-40 سال کے، سب کو 40-40 سال کے وہ عمر عطا ہوئی۔ سب تو چپ رہے، انسان بھلا کہاں خاموش رہے تھے، میں کہا یار 40 سال تو بہت کم ہے۔ اب انہوں نے دوسروں سے دوڑ دھوپ شروع کی کہ بھائی اگر زیادہ آپ محسوس ہو تو ہم کو دے دیں۔ کتے نے کہا ہم کیا کریں گے 40 سال، 20 سال لے لیجیے آپ، کتے سے مل گیا۔ آگے وہ گدھا مل گیا، گدھے نے کہا میرے 20 سال لے لو بھیا، 20 بہت ہے، وہ بھی آ گیا۔ آخر میں الو سے مل گئے 20 سال۔ اس طرح گدھا، کتا، الو تینوں سے 20-20 سال مل گئے۔ اس چینی کہاوت میں تھا کہ انسان نارمل زندگی 40 سال تک بسر کرتا ہے، اچھی خراب، امیری زندگی، غریبی زندگی وہ تو ہوتی ہے۔ 40 سال کے بعد پہلے گدھے کا اس پہ اثر ہونے لگتا ہے، پھر کتے کا ہونے لگتا ہے، پھر الو کا ہوتا ہے۔ میں نے اس پہ نظم کہہ دی ہے، چند کلی پھننے لگا دی ہے اپنی طرف سے ملایا کیجیے۔ ایک پرانی کہاوت، سنتے ہیں روز ازل جب عمر کا اٹھا سوال، تو ہر ایک مخلوق کو بخشے گئے 40 سال۔ حضرت انسان بھلا کب مطمئن ہونے لگے، عمر کچھ بڑھ جائے اس کی جستجو کرنے لگے۔ دے دیے پہلے گدھے نے ان کو اپنے 20 سال، مل گئے کتے سے بھی پھر ان کو اس کے 20 سال۔ تھی تمنا سینچری ہو جائے تو ہوگا کمال، مل گئے الو سے بھی ان کو بالآخر 20 سال۔ اس طرح سے 100 برس کی عمر پوری ہو گئی، آ گئے دنیا میں اور پھر یوں بسر ہونے لگی۔ جیسی قسمت ہو بسر کرتا ہے یہ 40 سال، خواب آنکھوں میں بسائے رکھتا ہے 40 سال۔ مہرباں ہے تو کبھی نہ مہرباں ہے کبھی،
ہے کبھی شبنم کبھی آتش بجا ہے زندگی. واہ پہلے بچپن پھر لڑکپن پھر جوانی آ گئی, رفتہ رفتہ اپنے مرکز پر کہانی آ گئی. واہ چاہے کوئی ہو جوانی رنگ لاتی ہے ضرور, مہترانی ہو کہ رانی مسکراتی ہے ضرور. اور دل میں چھپ چھپ کر بنا کرتی ہیں تصویریں بہت, ہوتی ہیں خواب جوانی تیری تعبیریں بہت. ہو گئے 40 کے تو پھر جوانی ختم ہے, دل اسے مانے نہ مانے پر کہانی ختم ہے. اب گدھے کی طرح لادے زندگی کا بوجھ ہے, اپنی ذمہ داریوں کا فیملی کا بوجھ ہے. زندگی قید شریعت میں جب آتی ہے جناب, کثرت اولاد کے جلوے دکھاتی ہے جناب. جو کبھی تھے یوسف ثانی وہ اب پامال ہیں, گرد عالم زمانہ سے پریشان حال ہے. اور جو کبھی سروے چمن تھیں اب ہے قندھاری انار, اور پیچھے ہے فضل خدا سے 12 بچوں کی قطار. چل پڑا منزل کی جانب زندگی کا کارواں, راہ میں محنت مشقت دقتیں آسانیاں. 60 کے جب ہو گئے اسکار رفتہ ہو گئے, مزمحل ہیں سب قوا کمزور خستہ ہو گئے. اب تو ہر چھوٹے بڑے پر بھونکنا ہے اس کا کام, ہے شریک زندگی کھانسی دما نزلہ زکام. رات دن بھوکا کرو اب کوئی سنتا ہی نہیں, اب کسی گنتی میں اس کو کوئی گنتا ہی نہیں. اپنا کیف شعر سنیے, اپنا کیف وصل ہے نئے لذت درد جگر, اب ہے گٹھیا ذوف معدہ درد دل درد جگر. اب کوئی مانے یا نہ مانے رائے دینا اس کا کام, اور ہر ایک مسئلے میں ٹانگ اڑانا اس کا کام. اور ہو گیا 80 کا تو بس اونگتا رہتا ہے یہ, یا ہر ایک کو مثل الو گھورتا رہتا ہے. کیا کہوں تجھ سے ضعیفی کی جا کا ہی نہ پوچھ, کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ. ہے یہ منظر زندگی کی آخری تصویر کا, صبح کرنا شام کا لانا ہے جوشی. ایک گوشے میں پڑا ہے جو بھی ہونا ہے سو ہو, اور کس نمی پرسد کہ بھیا کیسے ہو اور کون ہو. بہت ہے. معزز ناظرین ملاحظہ فرمائیے جناب ہاشمہ سہیل کا لکھا ہوا خوبصورت ترانہ اردو جسے آپ نے عالمی اردو کانفرنس کے لیے قلم بند کیا تھا. ہماری زباں اس شمع کے ہم پروانے ہیں, یہ اردو زباں ہے ہماری زباں اس شمع کے ہم پروانے ہیں. صحبائے وفا و الفت سے لبریز یہاں پیمانے ہیں, یہ اردو زباں اردو زباں, یہ اردو زباں ہے ہماری زباں اس شمع کے ہم پروانے ہیں. کے گلشن سے اٹھی خوشبو بن کر, پھر دلی کے بازاروں میں یہ پھیل گئی اردو بن کر. یہ صبح بنارس شام اودھ, یہ نور چراغ دیر و حرم, یہ لال یمن یہ مشک ختن, یہ پیار محبت کا پرچم. پنجاب
رب کا ناز و نیاز اس میں، اور دتن کا سوز و گداز اس میں، ہندی کی مدھر بانی اس میں، گیتوں کا کھنکتا ساز اس میں، ہندی کی مدھر بانی اس میں، گیتوں کا کھنکتا ساز اس میں، یہ قوس قزح تہذیبوں کی، یہ سنگم کئی زبانوں کا، یہ اردو زبان ہے ہماری زبان، اس شمع کے ہم پروانے ہیں، یہ اردو زبان ہے ہماری زبان، اس شمع کے ہم پروانے ہیں۔ مرکز کئی خزانوں کا، یہ محفل چاند ستاروں کی، یہ مرکز کئی خزانوں کا، ہے ماں کی لوری بھی اس میں، دادی کی کہانی بھی اس میں، لوری بھی اس میں، دادی کی کہانی بھی اس میں، کوہساروں کی عظمت اس میں، دریا کی روانی بھی اس میں، کوہساروں کی عظمت اس میں، دریا کی روانی بھی اس میں، کبھی آزادی کی جنگ میں یہ مظلوموں کا ہتھیار بنی، کبھی آزادی کی جنگ میں یہ مظلوموں کا ہتھیار بنی، کبھی آزادی کی جنگ میں یہ مظلوموں کا ہتھیار بنی، کبھی ظلم کے آگے سینہ سے پر دل والوں کی للکار بنی، یہ اردو زبان ہے ہماری زبان، اس شمع کے ہم پروانے ہیں، یہ اردو زبان ہے ہماری زبان، اس شمع کے ہم پروانے ہیں۔ ڈگر یہ ہندو پاکستان سے نکلی، گھومی پھری یہ ڈگر ڈگر، اور علم و فضل کی جوت جلاتی، قریہ قریہ نگر نگر، یہ امریکہ میں نیڈا میں، یہ روس میں انگلستان میں ہے، یہ افریقہ میں یورپ میں ہے، عرب میں یہ جاپان میں ہے پیار
लेकिन हम उर्दू वाले हैं। ये उर्दू जुबान है हमारी जुबान, इस शमा के हम परवाने हैं। ये उर्दू जुबान है हमारी जुबान, इस शमा के हम परवाने हैं। सहबाए वफाओ उल्फत से लबरेज यहाँ पैमाने हैं। ये उर्दू जुबान है हमारी जुबान, इस शमा के हम परवाने